Okay, assalamu alaikum. So this is what we did in lab 6 in our previous lab. Okay, so in our previous lab we basically learned about using the plot function, and we created 2D plots, two-dimensional plots. Okay, so we plotted a vector, we plotted a matrix, we plotted two vectors x and y, one along the x-axis, the other along the y-axis. Then we looked at another variation of plot where we plotted two curves on the same graph or plot. We also learned about the histogram plot. Okay, so histogram plot is again easy and useful in some things. And we wrote this script, so I hope you have it and you remember it. So this is what we wrote in our last lecture. Okay, this part is new. I'll show you what it does in this particular lecture, particular lab. But this is what we did in our last lab. Okay, this was the code. So we basically created two sine waves, and we created sine waves in such a way like so that we could vary the frequency of those sine waves, and we could basically plot a number of cycles of those sine waves. Okay, so this is what we did in our last lab, and this was the outcome. So here you can see, like, we have these two sine waves. One is in the blue, plotted in blue color, the other is plotted in orange color. And you can see, like, the frequency of the orange sine wave is more than the blue one. This is what we did. Okay, so today we are going to expand on this discussion, or on this knowledge. In this particular lab, we will learn about another MATLAB and Octave function called the subplot function. Okay, so we will learn about the subplot function. So one is the plot function, the other is the subplot function. Now the subplot function, it does not create any plot. Like, if you execute the plot command, say for example, if you look at this code, if you say plot something, so that thing is plotted. You can see that thing drawn on a figure object. Okay, so when we run this particular code, we see a figure object created, and on that figure object we see the plot actually being created or drawn. Okay, so this is the effect of plot command. Now the subplot command is a little different. Okay, so it does not create a plot. What it does is, if you want, like, to create multiple plots on the same figure, so you want to create a grid of plots. Okay, you want to create a grid of plots. So for example, here if you look, we have uh, two sine waves on the same plot. We have two sine waves on the same plot. So these are two sine waves on the same plot. Now what if we want to have, what if we want to look at these two sine waves on two different plots? Okay, so we want to have two separate graphs, one showing the sine wave that is plotted here in blue, and the other showing the sine wave with a higher frequency that is shown here in orange. So what if we want to do that? So we want to have two plots, one above the other or side by side, whichever way you want, you can do that. So the subplot command basically creates a grid of plots. Now let me demonstrate what do I mean by that. So I have written this code. Let me uncomment it. So here I create one figure object. When I say f1 is equal to figure, so I create one figure object, and whatever I plot, it goes on to that figure object. Okay, so what do I mean by that? What do I mean by that? Now if we run this code again, this script again, so this is a figure object. This window that you see, that I am moving around the screen, this is a figure object, and here you can see figure 1 is written. Okay, so f1 is equal to figure. When I say that, so this figure object is created. Okay, so you can refer to this figure object as f1 in your code. So this is the name of this particular window is f1. Okay, now
This is one figure object, and on this figure object you can see two functions plotted on the same graph. Now I want to create another figure object f2, and on that particular figure object I want to plot these two functions separately. Okay, I want to plot these two functions separately. How can I do that? So you can do that using the subplot command. Now understand the subplot command. So the subplot command, or the subplot function, it takes these three inputs m, n and p. Now mn is basically the number of rows and columns that you want to divide the figure into. So imagine this figure window and imagine that you want to divide it into a grid. अब ग्रिड क्या चीज़ होती है? ग्रिड ऐसी चीज़ होती है जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें रोज और कॉलम्स हों. ग्रिड इज समथिंग इन विच यू हैव रोज एंड कॉलम्स, जैसे आपके पास टेबल होता है. तो अब आप फिगर ऑब्जेक्ट को कितने रोज और कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं. ठीक है, तो अगर आप एक ही फिगर में फॉर एग्जांपल दो फंक्शंस को प्लॉट करना चाहते हैं, तो ऑल यू नीड इज, आपके पास दो सेल्स होने चाहिए या दो टाइल्स होने चाहिए उस फिगर ऑब्जेक्ट में. ठीक है, तो वो दो टाइल्स जो हैं वो साइड बाय साइड भी हो सकते हैं, वो दो टाइल्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. सो यू कैन हैव 2 rows and 1 column, और you can have 1 row and 2 columns. ठीक है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं. सब प्लॉट कमांड यही करता है, वो किसी भी फिगर ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देता है इनटू अ ग्रिड विद m rows and n columns, और फिर आप उस पे पोजीशन बताते हैं कि जी इस पोजीशन पे इस फिगर को प्लॉट कर दें, इस पे इस प्लॉट कर दें, इस पे इसको प्लॉट कर दें, सॉरी इस ग्राफ को प्लॉट कर दें. सो लेट अस डू इट practically and then you'll come to know. So say for example we want to plot these two functions one above the other. ठीक है, हम इनको एक दूसरे के ऊपर तले इनको प्लॉट करना चाहते हैं. So what we do here is we say subplot 2 by 1. Okay, so we have 2 rows and 1 column. So हमने इस figure object f2 को we have divided f2 into 2 tiles and those tiles are stacked above each other. ठीक है, तो उसमें 2 rows हैं और 1 column है. ठीक है, और हम कहते हैं कि पहले वाले टाइल पे आप प्लॉट करें साइन 1 को आप प्लॉट करें ऑन द फर्स्ट टाइल. ठीक है, फिर हम कहते हैं कि दूसरे वाले टाइल पे 2 पे आप साइन 2 जो हमारा फंक्शन है उसको प्लॉट करें. ठीक है, सो व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ दीज, ये जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं इनका असर क्या होगा? इनका असर ये होगा कि हमारे पास एक नया फिगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यानी एक नई फिगर विंडो आप देखेंगे जिसका टाइटल होगा फिगर 2. अच्छा, उस फिगर विंडो को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, वो आपको नज़र तो नहीं आ रही होंगी, उसमें आपको नज़र इस तरह आ रही होंगी कि जब ये प्लॉट्स उसमें प्रिंट हो जाएंगी तो आपको फिर नज़र आ जाएगा कि जी हाँ जी ये प्लॉट ऊपर है, ये नीचे है. तो ये दोनों जो है, ये विंडो जो है वो दो हिस्सों में तकसीम की गई है. तो आप उस तरीके से उसको देख लेंगे. तो ये दो उस टाइल्स या दो सेल्स या ऐसे ग्रिड में जिसमें दो सेल्स हैं उनमें हम उसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो ये जो हमने 2 1 लिखा है ना, तो 2 rows and 1 column. So we have 2 rows and 1 column. So all the plots that you'll see वो एक कॉलम में होंगे और उस कॉलम में 2 rows होंगी. दो ही प्लॉट्स हम फिलहाल प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इसलिए. अच्छा, आप इसको देख लें कि इसका असर क्या होगा, तो then you'll see, you'll understand. So here you can see figure 1 and figure 2. Figure 1 we have already done that. This is the outcome of our previous lab number 6. लैब नंबर 7 में, इस लैब में हम ये चीज़ देखना चाह रहे हैं, ये जो सब प्लॉट का असर है. ठीक है, तो अब सब प्लॉट के असर को आप देख सकते हैं कि हमने एक नया ऑब्जेक्ट फिगर 2 क्रिएट किया. जब हमने यहाँ पे कहा ना कि f2 इज इक्वल टू फिगर, तो ये वाला विंडो ऑब्जेक्ट फिगर 2 क्रिएट हो गया. ठीक है, एंड देन वी सेड दैट सब प्लॉट, ठीक है, वी यूज द सब प्लॉट कमांड. सब प्लॉट कमांड 2 by 1 एंड देन 1. तो सब प्लॉट कमांड क्या करता है, वो इस फिगर को उसने डिवाइड कर दिया इनटू 2 rows एंड 1 column. तो आप देख रहे हैं ना कि ये एक प्लॉट पहली रो में है, दूसरा प्लॉट दूसरी रो में है और दोनों एक ही कॉलम में है. ठीक है,
तो हमने इस फिगर ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया इनटू 2 rows and 1 column, और हम इसमें पोजीशन, दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, और हमने उस पे स्पेसिफाई कर दिया कि जी पोजीशन नंबर 1 पे कौन सा साइन वेव प्लॉट होगा, पोजीशन नंबर 2 पे कौन सा साइन वेव प्लॉट होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द सब प्लॉट कमांड डज। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम इसको 1 रो और 2 कॉलम्स में डाल देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि इसका इफेक्ट क्या होगा। So you can do that. You can divide the figure object into 1 row and 2 columns. अब ये दोनों ग्राफ्स साइड बाय साइड होंगे। ठीक है, ऊपर तले नहीं होंगे, साइड बाय साइड होंगे। अच्छा, so this is what the effect is। ठीक है, अब हमने सब प्लॉट में क्या किया है, हमने इन दोनों प्लॉट्स को साइड बाय साइड प्रिंट कर दिया है। ठीक है, दोनों प्लॉट्स को साइड बाय साइड प्रिंट कर दिया है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सब प्लॉट कमांड क्या करता है। सब प्लॉट कमांड एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं करता। ठीक है, एक्चुअल प्लॉटिंग आपने प्लॉट कमांड से ही करनी है। सब प्लॉट कमांड क्या करता है, वो फिगर ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देता है इनटू अ ग्रिड, m by n ग्रिड। m and n यू स्पेसिफाई कि m कितने रोज होंगे, n कितने कॉलम्स होंगे, वो आप स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, in order to clarify it further, let us go through and let us do another example। ठीक है, another example क्या है, so वो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ functions हैं, y1 y2 y3 y4। ठीक है, so y1 y2 y3 y4 ये तमाम t के functions हैं, independent variable t के ये functions हैं, और इनको जो है हम से प्लॉट करना चाहेंगे। ठीक है, और इनको हम कैसे प्लॉट करना चाहेंगे, ये एक ही फिगर में होंगे। टॉप लेफ्ट पे हमारे पास ये फंक्शन होगा, टॉप राइट पे ये होगा, बॉटम लेफ्ट पे ये होगा, बॉटम राइट पे ये होगा। तो हम ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसे आप ये कर सकते हैं। 4 मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, और इन 4 मुख्तलिफ फंक्शंस को आप कैसे प्लॉट करेंगे ऑन अ सिंगल प्लॉट। ठीक है, अब ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो हमारे वेरिएबल टी के फंक्शंस हैं। ठीक है, सो हम यही करेंगे कि पहले वेरिएबल टी की कुछ वैल्यूज जनरेट कर लेंगे। वील जनरेट अ वेक्टर ऑफ वैल्यूज फॉर द वेरिएबल टी, एंड देन वील कैलकुलेट दीज फंक्शंस, एंड देन वील प्लॉट दीज फंक्शंस। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स डू दैट। अच्छा, लेट अस क्रिएट अनदर स्क्रिप्ट फाइल। इसको एक नई स्क्रिप्ट फाइल में कर लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज लेट अस नेम इट कि जी हम यहाँ पे सब प्लॉट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, so we need to generate these 4 functions, and these 4 functions are basically functions of the variable t. So let us generate some values for variable t, and then let us generate these functions. ठीक है, so let us do that. Let us say कि we generate, let me uh, increase the font size ताकि आपको देखने में आसानी हो। So let us generate values for t using the linspace function. तो linspace function में आप क्या करते हैं, you specify the lower value and then the upper value. So say हम -1 से 1 तक वैल्यूज जनरेट करते हैं, और कितनी वैल्यूज जनरेट करें, अगर हम नहीं स्पेसिफाई करते कि कितनी वैल्यूज जनरेट करें तो 100 वैल्यूज जनरेट होंगी। ठीक है, और अगर फर्स्ट कि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, सो लेट अस जनरेट 200 वैल्यूज। तो हमने t के लिए 200 वैल्यूज जनरेट करनी। सो t वुड बी अ वेक्टर ऑफ 200 वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम -1 गोइंग अप अंटिल +1। ठीक है, अच्छा, so now let us calculate these functions. Function number 1 is y1 is t square minus 4t plus 3. ठीक है, so y1 is t square, so we have the hash, the hat operator, sorry. So let me find the hat operator. So we need to find its square. ठीक है, अच्छा, t square, and we need to do it
element wise. Let me check. ठीक है? If you do something after a long time, you tend to forget it. So let us see if, let us first work out okay, how does this function work. So say for example this is a, vector a, and this is the square of vector a. No, we cannot do that. Okay? So we have to use the element wise operator. Uska syntax भी ये नहीं है. So this is what we have to do. This is how we have to do it. Okay? अच्छा, जब आपको कोई चीज़ भूल जाए तो then you can try it on the command window and see, like, find out how does it work. So this is how it would work. So first we'll find the element wise square of t. Acha, then we will what is the function? Minus 4t. So then we will subtract minus 4 element wise product of t. Even if you don't do it, like multiplication is usually fine, no problem with that, but to be sure you can do that. And then 3. ठीक है? अच्छा, तो we can demonstrate this here as well कि ये यहाँ पे काम करता है या नहीं. So a, for example, a का square minus 4 times say a, ठीक है, 4 times a plus 3. So this is what you get. So even if you don't use the element wise operation here, you'll be fine. Okay? Or you can use it, no problem. You can use element wise addition as well to be sure कि ये सब कुछ element wise ही होगा. अच्छा. So I hope like we are clear here. So this is fine. This would work fine. This is y1. So ये y1 generate कर लेगा. Now what is y2? ठीक है. What is y2? Sorry. So y2 is cos of 4t. ठीक है? So let us treat के t is in radians. T is in radians. उसकी value भी छोटी है, -1 से +1. So we'll call simply the cos function. अगर हम degrees में करें तो cos d function को call करेंगे. So y is this thing. ठीक है? So let us y2 is cos of 4 times t. ठीक है? So y2 is cos of 4t. Achha, this is also done. Let us find out y3. What is y3? y3 is e raised to the power minus 12t. ठीक है? E raised to the power minus 12t. Now if you want to find that, so you have to use the exponential function. I guess help exp. Yes, so the exponential function basically calculates e raised to the power x. ठीक है? E raised to the power x. So if we want to find, say for example, e raised to the power 2, this is what we need to do. ठीक है? If we want to find e raised to the power say a, so basically a के हर element होगा e का power. ठीक है? So e raised to the power a का first element, e raised to the power a का second element, e raised to the power a का third element. So here a is a vector. ठीक है? So if you pass a vector as an argument to this function, तो क्या होगा कि आपके पास ये e, यहाँ तो सिंपल एक स्केलर वैल्यू आपने प्रोवाइड की ना, तो इसने e का स्क्वायर मालूम किया. यहाँ आपने अब a पूरा एक वेक्टर प्रोवाइड किया. उस वेक्टर में वैल्यूज क्या क्या हैं? 1 2 3. तो ये पहले e raised to the power 1 मालूम करेगा, फिर e raised to the power 2, फिर e raised to the power 3. अच्छा, हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये काम करना चाह रहे हैं. वी वांट टू फाइंड आउट e raised to the power minus 12t minus 12 t. ठीक है? So this is what we want to do. 12 times t. This is what we want to find out. This is y3. Now what is y4? y4 is basically sine 2 pi t. Sine 2 pi t. So let us calculate that. Sine of 2 times pi times t. T is a vector here. ठीक है? तो आपके पास इसका जो आउटकम होगा वो भी एक वेक्टर होगा. Okay, so we have all the functions and now we need to plot these functions.
कैसे फंक्शन को प्लॉट करेंगे? सबसे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उसमें y1, टॉप राइट में y2, बॉटम लेफ्ट में y3, बॉटम राइट में y4, एंड दीज ऑल शुड बी ऑन द सेम figure. So let us say f1 is equal to figure. Let us create that and then use the subplot command. तो हमारे पास चार फंक्शंस हैं, ये 2 बाय 2 की ग्रिड बनेगी, ठीक है, 2 बाय 2 की ग्रिड होगी, 2 रोज 2 कॉलम्स। तो हर रो में हमारे पास 2 टाइल्स होंगे जिस पे हम प्रिंट कर सकें, प्लॉट कर सकें किसी भी फंक्शन को। पहली जो लोकेशन है वो हमारे पास है टॉप लेफ्ट, ठीक है, टॉप लेफ्ट। सो सब प्लॉट टॉप लेफ्ट, उस पे किस फंक्शन को प्रिंट करना है? उस पे हमने y1 को प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज टॉप राइट, उस पे किस फंक्शन को प्रिंट करना है? y2 को। सिमिलरली उसके बाद हमारे पास है बॉटम लेफ्ट, उस पे हम प्रिंट करना चाह रहे हैं y3 को, ठीक है। एंड देन वी हैव बॉटम राइट, ठीक है, उस पे हम प्रिंट करना चाह रहे हैं y4, ठीक है। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, ठीक है। तो यूजिंग द सब प्लॉट कमांड हम इस फिगर को डिवाइड कर देते हैं इनटू अ 2 बाय 2 ग्रिड। उसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 4 सेल्स हैं या 4 टाइल्स हैं, हर सेल में एक प्लॉट आएगा। तो टॉप जो लेफ्ट कॉर्नर है उसमें हम y1 को प्रिंट करना चाहते हैं, राइट में y2 को, टॉप बॉटम लेफ्ट में y3 को, बॉटम राइट में y4 को। So this is how we do that. Position number 1 is top left, number 2 is top right, number 3 is bottom left, number 4 is bottom right. ठीक है? So let us see if it works this way. Let us save and run. अच्छा जी. Okay, so this is what we get. This is figure 1. ठीक है? फिगर 1 को हमने यूजिंग द सब प्लॉट कमांड 2 बाई 2 की ग्रिड में तकसीम किया, ठीक है। सो दिस इज 2 बाई 2 ग्रिड, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। 2 बाई 2 मतलब 4 हमारे पास टाइल्स हैं या सेल्स हैं। ये जो पहला फंक्शन है दिस इज y1, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दिस शुड बी अ पैराबोलिक कर्व, ठीक है। हमारे y की t की वैल्यूज ऐसी हैं कि वो आपको एज अ कर्व नज़र नहीं आ रहा, बट दीज आर क्लियर कि ये कोसाइन वेव है और ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है और ये एक साइन वेव है, ठीक है। तो ये कहने का मकसद ये है कि आपको पता है कि हर फंक्शन जो है वो जिस जगह पे हम चाहते थे उस जगह पे हमने उसको प्लॉट किया है, ठीक है। So this is basically how the subplot command works. अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने नंबरिंग दी ना, पोजिशनिंग, so position number 1 is this position, top left. पोजिशन नंबर 2 यहाँ पे जो हमने स्पेसिफाई किया है दिस इज दिस पोजिशन, ठीक है। तो नंबरिंग यूँ शुरू होती है, रो वाइज नंबरिंग शुरू होती है। तो दिस इज पोजिशन नंबर 1, देन 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये शुरू होती है। अब आप ये अरेंजमेंट चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ तो हमने 2 बाई 2 की ग्रिड में प्लॉट किया है, आप इसको 4 बाय 1 की ग्रिड या 1 बाय 4 की ग्रिड में भी प्लॉट कर सकते हैं। सो यू कैन मेक इट से आप चाहते हैं कि नहीं सब ऊपर तले हों, तो आपके पास 4 रोज और 1 कॉलम, आप इसमें इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। 4 रोज और 1 कॉलम की शक्ल में आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, सो ये तमाम प्लॉट्स फिर आपको ऊपर तले नजर आएंगे यूँ, ठीक है। वो इतने क्लियर हैं या नहीं है वो एक अलग डिबेट है, बट अब आपके पास ये 4 बाय 1 की ग्रिड में नजर आ रहे हैं ऊपर तले, ठीक है। सो यूजिंग द सब प्लॉट कमांड आप मल्टीपल प्लॉट्स को जो कि रिलेटेड हैं आप उनको एक फिगर में शो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये उसका बेसिक एडवांटेज है। अच्छा, सिमिलरली यू कैन वेरी इट, यू कैन, आप इनको साइड बाय साइड इनको आप वो कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी आई वांट 1 बाय 4 ग्रिड,
अच्छा जी, तो आप इनको 1/4 ग्रिड में, तब ये तमाम हॉरिजेंटली साइड बाय साइड प्रिंट होंगे और उसमें पोजीशनिंग का भी फ्रॉम लेफ़्ट से वो पोजीशनिंग शुरू होगी और राइट तक जाएगी। तो अब वो तमाम जो प्लॉट्स हैं आपको साइड बाय साइड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट, यानी प्लॉट्स आपको बिल्कुल श्रिंक हुए नज़र आ रहे हैं, बट द पॉइंट वाज टू डेमोन्स्ट्रेट कि यूजिंग द सब प्लॉट कमांड आप ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन प्लॉट मल्टीपल यू कैन प्लॉट मल्टीपल फंक्शंस ऑन द सेम फिगर साइड बाय साइड, और ऐसा करने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है इन सम सिचुएशंस, ओके। So this is it for this particular lab. In this particular lab, like, we want to demonstrate or learn about uh, the subplot function, ठीक है। subplot function के बारे में हम जानना चाहते थे। तो subplot function actual plotting नहीं करता, it basically divides the current figure into an m by n grid। एक grid में उसको divide कर देता है m by n, m is the number of rows, n is the number of columns, और हर उसमें फिर ये एक सेपरेट एक्सेस ड्रॉ कर लेता है जिस पे आप एक सेपरेट फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को प्लॉट करने के लिए आप पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं कि इस पोजीशन पे इसको वो करेंगे, वो पोजीशन आप स्पेसिफाई करते हैं एज एन इंटीजर नंबर, ठीक है, 1 2 3 4। नंबरिंग शुरू होती है टॉप लेफ्ट से, टॉप लेफ्ट से शुरू होती है, फिर लेफ्ट में अगर और कॉलम्स हैं तो उस तक जाती है, फिर एक रो नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ठीक है। सो नंबरिंग शुरू होती है फ्रॉम द लेफ्ट एंड टॉप मोस्ट कॉर्नर, और फिर वो जाती है टू द बॉटम एंड राइट मोस्ट कॉर्नर, इस डायरेक्शन में वो नंबरिंग होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। पोस्ट लैब टास्क इसमें ये है कि आपने अपनी नंबर एक टास्क तो ये है कि ये कोड जो है वो मैं अपलोड नहीं करूँगा, तो आपने ये कोड खुद से लिखना है, खुद से दोबारा से वो करना है। नंबर 2, यू हैव टू सेलेक्ट 6 फंक्शंस एंड देन एटलीस्ट उनको एक 2/3 ग्रिड और 3/2 ग्रिड उसमें उन फंक्शंस को प्लॉट करें। सो यू आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल with using the subplot command, ठीक है। So this is it for lab 7.